हेलो बच्चों, एमएसके मैथ्स एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग सिमिलैरिटी टॉपिक की प्रैक्टिस सेट 1 देखेंगे। तो उसके अंदर हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बेस ऑफ ट्रायंगल इज 9 एंड हाइट इज 5। ओके, सो फर्स्ट ट्रायंगल का जो बेस है वो 9 है और जो उसकी हाइट है वो 5 है। Then second triangle base of another triangle is 10 and height is 6. So with the help of this find the areas of this triangle. तो इसमें हम लोग areas of triangle find out करेंगे, means ratio of that areas. So let us start. First we draw the triangle. Okay, so this is first triangle and this one second triangle. So we suppose that the first triangle having height h1. Okay, this triangle having height h1, okay, and base b1. Similarly second triangle having height h2 and base is b2. okay, so for चलो अभी स्टार्ट करते हैं हम। तो सपोज ट्रायंगल 1 area, triangle 1's area a1 and base b1 and height h1. Triangle second area a2 base b2 and height h2. So with the help of ratio of area of triangle theorem, ratio of area of triangle, okay, so a1 upon a2, यहाँ पर जो a1 है ये एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल है और a2 जो है ये एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल है। So area of a1 upon a2 is equal to, it is a multiplication of h1 into b1 upon h2 into b2. Okay, so now we solve it. So from this statement h1, what is h1? b1 is 9 over here, b1, this is first base, so b1 is 9, यहाँ पे b1 9 है, h1 जो है आपका 5 है, सिमिलरली b2 जो है 10 है एंड h2 6 है। सो देयरफॉर a1 अपॉन a2, यहां पर अभी देखो हम लोग क्या करेंगे कि जो b1 9 है ये जो वैल्यूज है वो हमारे इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। ओके, इस इक्वेशन में। सो h1 क्या है हमारा, h1 क्या है 5 है, तो 5 इंटू व्हाट इज b1 9, 5 इंटू 9 अपॉन देन h2 6 इंटू 10। ओके, तो मैंने ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया। सो a1 अपॉन a2 is equal to, now we cancel it, so 3 2s are 6 and 3 3s are 9. Okay, now this one is cancelled with a 5 table, 5 1s are 5, 5 2s are 10, so 1 into 3 upon 2 into 2. So a1 upon a2 is equal to 3 1s are 3, 2 2s are 4. So this is our final answer of this question. So I hope that all of you understood. Okay,
in practice set 1.1 question number 2 in figure 1.13 BC is perpendicular on AB. So in figure given that BC is a perpendicular on AB. So this one is a BC of triangle 1 which is perpendicular base AB. Okay, in second triangle AD is perpendicular on PB AB. So AD is perpendicular on AB. Okay, so this is given. Now value is also given. वैल्यू भी यहाँ पर दी हुई है कि BC is equal to 4 है, तो यहाँ पे हमने लिखा BC 4 and AD 8, तो यहाँ पे AD 8. तो अभी अगर आप लोग इस फिगर में देखोगे तो फर्स्ट जो ट्रायंगल है उसके अंदर ABC में बेस AB है और सेकंड ट्रायंगल जो है ADB में भी बेस सेम है. ओके, तो हम लोग यहाँ पर कंडीशन नंबर 1 यूज करेंगे. तो अभी गिवन क्या है उसके अंदर कि गिवन है आपको BC कितना है 4 है और AD आपका 8 है. ओके, तो दोनों ट्रायंगल में अगर आप देखते हो तो बेस जो है उसका सेम है. यहाँ पे बेस सेम है तो हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन, देखो ये वाला एरिया है ट्रायंगल ABC, ये ट्रायंगल का एरिया और दूसरा ट्रायंगल है ADB. एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB इज इक्वल टू BC अपॉन AD. रीजन क्या है यहां पर रहेगा, उसका रीजन रहेगा इक्वल हाइट्स, इक्वल बेस. क्योंकि यहां पर देखो अगर तो इसका बेस जो है वो दोनों में कॉमन है, इसके लिए हम लोग लिखेंगे इक्वल बेस. नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BC? BC 4 है, तो यहाँ पे हम लोग 4 पुट करेंगे. सेकंड वैल्यू ऑफ AD क्या है? AD 8 है, तो 8 पुट करते हैं. ओके, नाउ कैंसल इट, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8. So finally you will get area of triangle ABC upon area of triangle ADB is equal to 1 by 2. So I hope that all of you understood this problem with the help of this answer. Okay, thank you. 3. In practice set 1.1, now third question is in adjoining figure 1.14 segment PS perpendicular, segment PS is perpendicular on RQ. मतलब segment PS जो है यहाँ पर segment PS मतलब ये वाला PS जो है वो RQ पे perpendicular है. ओके, PS जो है वो RQ पे perpendicular है. दूसरा segment जो है segment QT ये वाला segment है. So this segment QT जो है वो PR पे perpendicular है. ओके, और गिवन में क्या क्या है कि गिवन दिया है आपको कि RQ है 6, PS है 6, PR की वैल्यू है 12 एंड यू हैव टू फाइंड आउट, आपको क्या फाइंड करना है कि QT क्या है. ओके, तो अभी हम लोग देखते हैं कि QT कैसे फाइंड आउट करना है. अभी यहाँ पर अगर हम देखें तो RQ, पहले अगर हम ट्रायंगल PQR लेते हैं क्योंकि ये हम इसके अंदर सेपरेटली सॉल्व करेंगे. इसमें जो है ना तो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ एंगल ट्रायंगल का थ्योरम लगेगा ना ही कोई और थ्योरम लगेगा. ये सेपरेटली एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूले से सॉल्व होगा. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट. तो यहां पर अगर हम ट्रायंगल कौन सा ले रहे, ये वाला ट्रायंगल लेना है आपको PQR. तो PQR ट्रायंगल अगर हम ले तो इसके अंदर PQR ट्रायंगल की हाइट जो है वो PS है और बेस जो है वो RQ बेस कितना है 6 है और जो हाइट है PS वो भी 6 है. तो इससे हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल जाएगा. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR is equal to half, what is the base?
तो आर क्यू आपका बेस है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे आर क्यू, और हाइट क्या है, हाइट 6 है, मतलब पीएस है, तो यहाँ पे पीएस लिखे हमने। ओके, तो दिस इक्वल टू हाफ इनटू व्हाट इज आर क्यू 6 एंड पीएस हाइट जो है वो भी 6 है। नाउ इट ये जो है 2 से कैंसिल होगा, सो वी कैंसिल इट, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, so 3 into 6, so it will be 3 6 जा 18, so area of triangle आपको मिल गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR 18 मिल गया। ओके, ठीक है, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR क्या मिला हमको, 18 मिल गया। ठीक है, तो फिर से अभी हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR ही लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, लेकिन इस बार क्या होगा कि बेस जो है हमारी जो हाइट है वो QT रहेगी और बेस जो है PR हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू, बेस क्या बताया मैंने आप लोगों को, PR, तो ये बेस आपका PR हो गया। ओके, तो PR आपका बेस है और हाइट क्या है, QT है। ओके, तो यहाँ पर देखो PQR जो है वो 18 है, तो यहाँ पे हम लोग PQR 18 लिखेंगे, ऑलरेडी वी फाइंड इट फाउंड। ठीक है, तो PQR 18 हो गया, हाफ PR आपका 12 है, ये जो आपका बेस है वो 12 है, तो यहाँ पे हमने 12 लिखा, और QT हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो फिर ये 2 के टेबल से 2 का टेबल से 6 12 कैंसिल होगा, तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, so 18 is equal to 6 into QT. Okay, then we divide this 6 over here, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 18 और जब 6 इस साइड में आएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा। क्यों डिवाइड होगा, क्योंकि इधर वो मल्टीप्लीकेशन में, इसलिए इधर आया तो डिवाइड हो गया, तो QT, तो 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, तो QT कितना मिल गया आपको, 3, और यही हमारा आंसर है, QT इज इक्वल टू 3। ठीक, तो प्रैक्टिस सेट 1.1 में थर्ड क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है आपका कि इट एडजॉइनिंग फिगर AP परपेंडिकुलर ऑन BC, तो यहाँ पर देखो ये AP जो है वो BC पे परपेंडिकुलर है। ओके, एंड AD इज अ पैरेलल टू BC, AD जो है पैरेलल है BC के। अब पैरेलल लाइन किसको कहते हैं, कि पैरेलल लाइन का मतलब क्या होता है कि उसके बीच का जो दो लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो सेम होता है, इसको हम पैरेलल लाइन बोलते हैं। अब डिस्टेंस सेम हुआ, इसका मतलब क्या है कि इसके बीच में जितने भी ट्रायंगल्स बनेंगे उनकी हाइट एक जैसी होगी। तो अभी यहाँ पर हम देखते हैं गिवन क्या है हमको, कि AD जो है वो पैरेलल है BC के, तो AD जब पैरेलल है BC के, अब हम दो ट्रायंगल इसमें इसके रेशियो फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ area of triangle ABC tends to area of triangle BCD. So area of triangle ABC जो है ABC upon area of triangle BCD, ये दो ट्रायंगल है। अगर आप लोग देखो तो यहाँ पर अगर आपको दिखाई देगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ये वाला ट्रायंगल है, इसकी हाइट है AP, और दूसरा ट्रायंगल है BCD ये वाला ट्रायंगल है, और इसकी हाइट क्या है, उसकी भी हाइट AP है। मतलब क्या हुआ कि दोनों ट्रायंगल की जो हाइट है वो इक्वल है, तो यहां पर हम लिखेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC की हाइट AP है, मतलब उसका बेस क्या है, BC है, तो यहां पर हाइट जो है वो भी सेम है और जो बेस है वो भी सेम है, तो यहां पर AP इंटू BC अपॉन AP इंटू BC। यहाँ रीजन क्या है इसका, कि ट्रायंगल हैविंग इक्वल बेस एंड हाइट, इक्वल बेस एंड हाइट्स, तो ट्रायंगल की इक्वल बेस और हाइट है, तो यहाँ पर ये वाला AP के साथ में कैंसल, BC के साथ कैंसल हो जाएगा, तो हमको फाइनली मिलेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD इज इक्वल टू 1/1। ओके, तो फाइनली हमको रेशियो मिला, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC टेंस टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD इज इक्वल टू 1 टेंस टू
1. Okay, so I hope that all of you understood. तो प्रैक्टिस सेट 1.1 में 5th नंबर का क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. ओके, इन एडजॉइनिंग फिगर, गिवन फिगर में PQ जो है परपेंडिकुलर है BC पर, तो यहाँ पर देखो PQ BC पे परपेंडिकुलर है. फिर उसके बाद में AD जो है परपेंडिकुलर है वो BC पर, तो सेकंड जो AD है वो BC पे परपेंडिकुलर है. सो फाइंड द फॉलोइंग रेशियोज. तो ऐसे 4 क्वेश्चन है, इसमें सब क्वेश्चन है. तो इसमें अभी सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC. अभी यहां पर देखो PQB जो ट्रायंगल है, PQB ये वाला ट्रायंगल, ओके, PQB ट्रायंगल ये वाला है और दूसरा ट्रायंगल है PBC. तो PBC ये बड़ा वाला ट्रायंगल, मतलब नीचे का ये छोटा में बड़ा वाला ट्रायंगल ये वाला. तो ये दोनों ट्रायंगल में अगर आप चेक करते हो PBQ और दूसरा ट्रायंगल है PBC, दोनों ट्रायंगल की जो हाइट है वो कॉमन है. ठीक है, तो हाइट कॉमन है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये ट्रायंगल के रेशियो है वो उनके जो बेस है उनके रेशियो के इक्वल होंगे. ठीक है, तो यहां पर हम लोग लिखते हैं, अभी हाइट इक्वल है इसलिए हम लोग हाइट नहीं लेंगे, क्या लेंगे, बेस लेंगे. तो फर्स्ट वाला जो ट्रायंगल उसका बेस है BQ और जो सेकंड वाला ट्रायंगल है उसका बेस है BC. रीजन यहां पे लिखना है कि इक्वल ट्रायंगल हैविंग इक्वल हाइट, ट्रायंगल की जो हाइट है वो इक्वल हाइट से. ओके, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर. सेकंड क्वेश्चन है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC और ABC. अब सेकंड को क्या है हमारा PBC, मतलब PBC ये बड़ा वाला ट्रायंगल PBC और सेकंड वाला जो ट्रायंगल है ABC, तो ये ABC. अब इस ट्रायंगल में अगर हम देखें PBC और ABC ट्रायंगल के अंदर, तो PBC ट्रायंगल में PQ जो है ये परपेंडिकुलर एक हाइट ये है और ABC ट्रायंगल के अंदर AB सेकंड हाइट है. लेकिन इसके अंदर अगर हम देखें तो इसमें बेस जो है दोनों ट्रायंगल के वो सेम है. तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हो ट्रायंगल PBC, इसका भी बेस BC है, ट्रायंगल ABC इसका भी बेस BC है, मतलब यहाँ पे बेस जो है वो इक्वल है. तो हम लोग इसको लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू PQ अपॉन AD. क्या रीजन है इसका, यहां पर रीजन ये है कि ट्रायंगल जो है उसके बेस इक्वल है, तो यहां पे हम लिखेंगे इक्वल बेसिस ट्रायंगल. ओके, तो थर्ड क्वेश्चन है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन ADC. अभी ABC जो ट्रायंगल है ये वाला है बड़ा ट्रायंगल, तो ABC उसके अंदर बेस जो है BC है और हाइट जो है वो AD है. और दूसरा ट्रायंगल है ADC, दूसरा ट्रायंगल ADC जो है ये वाला ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल है, तो इसके अंदर हाइट जो है वो AD है और बेस जो है BC है. तो इसमें अगर हम देखें दोनों ट्रायंगल के अंदर तो हाइट कॉमन है और उनके बेस जो है वो डिफरेंट है. तो हम यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC इज इक्वल टू ABC. अब ABC का बेस कौन है, BC है, यहाँ पे लिखेंगे BC और ADC का बेस कौन है, DC है. तो DC लिख दिया हमने यहाँ पर, लेकिन उनके क्या है, हाइट जो है वो इक्वल है, तो ये ट्रायंगल का लिखेंगे इक्वल हाइट्स. कि इनकी रीजन क्या है कि इनके रेशियो, ये जो दो ट्रायंगल है इनके जो रेशियो है उनके बेस के रेशियो के इक्वल है. ओके, तो ये थर्ड क्वेश्चन हो गया. नाउ फोर्थ क्वेश्चन, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC और PQC लेना है. तो ADC फिर से अभी ये ट्रायंगल है ADC, उसकी हाइट जो है वो ADC है, सॉरी AD हाइट है इसकी और बेस जो है DC है. जो सेकंड क्वेश्चन है PQC, सेकंड ट्रायंगल है PQC, तो PQC ट्रायंगल के अंदर PQC, इस ट्रायंगल के अंदर जो QC है
वो बेस है और पी क्यू जो है वो हाइट है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो दोनों ट्रायंगल की जो बेस और हाइट है वो डिफरेंट है। ओके, तो इसमें दोनों ट्रायंगल की बेस और हाइट डिफरेंट है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC इज इक्वल टू, ADC का बेस क्या है? ADC का बेस है DC और हाइट क्या है? AD। ओके, नाउ सेकंड PQC। तो PQC में अगर हम हाइट देखें, बेस देखें तो QC है और हाइट अगर देखें तो PQ है। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ आवर लास्ट question. Area means area of these two triangles, ratio of area of these two triangles are equal to ratio of their multiplication base into height. तो स्टूडेंट, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलो। थैंक यू।